Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you pronoun in grammar. Okay, so try to understand it. I think that almost all of you must have learnt about it in your lower classes. But now once again try to understand it. Students, firstly try to understand definition. What is meaning of pronoun? How can you define it? If anybody asks you to define pronoun. Students, the words which are used in the place of a noun. The words which are used in the place of a noun to avoid its repetition. Avoid its repetition means उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं are called pronoun. Okay? Pronouns are the words which are used in the place of noun to avoid its repetition. यानी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं. Okay? This is your definition. Now for example, let us try to understand it. First one, I have completed my work. In this sentence, pronoun word is I and my. Okay? Although it is used as pronoun, but here it is not pronoun, it is adjective. Okay? I have completed my work. Next one, this is my bag. In this sentence, pronoun word is this. Okay? Although my is used as pronoun, but here this my and this my is used with noun. That's why it is not pronoun. It is adjective. Okay? This is demonstrative pronoun. Next one, which is your pen? Students, here pronoun word is which and this is interrogative pronoun. Next one, that house is mine. In this sentence, pronoun word is mine and it is possessive pronoun. Okay? Mine, ours, yours, hers. Now next one, she did it herself. Here pronoun word is she and herself. Okay? Here pronoun word is she and herself. She is used as personal pronoun and herself is used as reflexive pronoun. Okay students? Now try to understand kinds of pronoun. I will explain you various categories of pronouns and their kinds of pronoun. Let us try to understand kinds of pronoun. Students, pronouns are classified into various categories. There are 10 categories of pronouns. Number 1, personal pronoun. Personal pronoun which stands for person. I will explain it later. Demonstrative pronoun. Demonstrative, that means demonstrate something. Okay. Next one, interrogative pronoun which is used for asking questions. Next one, distributive pronoun. Next one, possessive pronoun, shows possession. Next one, reflexive pronoun. Reflexive pronouns are made of by adding words like selves and self. I self, myself. I will explain it. Next one, emphasizing. They are same, but there is minute difference between reflexive and emphasizing pronoun. Next one, reciprocal pronoun. They are opposite in sense. Relative pronoun that are used for joining two sentences, two phrases. And the last one, that is indefinite pronoun. They denote or refer to some indefinite person. Okay? Now try to understand the definition. First definition. Students, definition of the personal pronoun. Okay? Personal pronoun. What is personal pronoun and for what these are
used. Try to understand it well. Okay, let us see it. What are personal pronouns? Personal pronoun. First one, personal pronoun. The words which refer to persons are called personal pronouns. Okay, the words which refer to three persons. Okay, there are three persons. The words which refer to three persons are termed as personal pronouns. Okay, for example, I as first one, I have done the work. मैंने काम पूरा कर लिया है. Here I is first person. It is personal pronoun. Now second example, you are not a hard-working person. Okay, here you, that is second person. Now next example, they will punish you. Here they and you are personal pronoun. They refer to third person and you refer to second person. Okay, students, pronouns, personal pronouns refer to three persons. Now try to understand three persons. Three persons क्या है? Okay, number one, first person. Okay, number one, first person, that is speaker. First person, first person, that means speaker. The words which we use for speaker come in this category. That means I, we, or, my, etc. Okay, now second person, that means listener. Second person means listener, one who listens. Okay, listener comes in this category. Second person, that means words like you, your. These words come in this category. Now third person means first person and second person. The words, the person about whom first and second person talk. Okay, third person means about whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी, ही, दे, देम, etc. Okay, so that means personal pronoun refer to
person and there are three persons. First person is the speaker, second person listener. Listener is the second person and the words which are used for listener are you, your. Okay, third person about whom we talk. First person and second person are talking about. That means he, she, it, they, them, his, her, etc. These words come in third person. Okay, student? I think definitely you must have understood well personal pronoun. Now next one category is that is demonstrative pronoun. Let us try to understand demonstrative pronoun. Okay? Demonstrative pronoun क्या है समझते हैं. Demonstrative means इशारा करना. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun means which demonstrates something. Okay, the words which are used to demonstrate or point out things. And persons. For example, first one, this is not your problem. This is not your problem. Here, this is used as demonstrative pronoun. Okay. Next one example. These are new books. These are new books. Here, these refer to demonstrative pronoun. Okay, students, this, these, that, those, etc. are used as demonstrative pronoun. Next category is anything you can take possessive, reflexive, relative. I will explain you remaining categories are pronoun in my next video. Till then, thank you. Good morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have completed unit 2nd of chapter 3rd. Now today we will start its 3rd unit, which is atmospheric pressure. Student, as we know, our earth is surrounded by air and this envelope of air around the earth is called atmosphere. Students, since air is a kind of matter, so it exerts thrust or weight on the earth's surface. So we can say the force exerted by the atmosphere per unit area on the surface of earth is called atmospheric pressure. So student, what is atmospheric pressure? The force exerted by the atmosphere per unit area
on the surface of earth is called atmospheric pressure, and the value of atmospheric pressure is 100,000 Pascal or 10 to the power 5 Newton per meter square, and this is the unit of pressure. Now students, some examples of daily life which proves the existence of atmospheric pressure. First is when we blow air in a balloon, it bulges because of the pressure exerted by the air filled in it. Now second example is it is due to atmospheric pressure that ink gets filled into the fountain pen. Now third example is water is drawn up from the well by a water pump. Because of the atmospheric pressure acting on water in the well. Now first example is when we blow air in a balloon, it bulges because of the pressure exerted by the air filled in it. Now second example is it is due to atmospheric pressure that ink gets filled into the fountain pen. Now third example is water is drawn up from the well by a water pump because of the atmospheric pressure acting on water in the well. Now measurement of atmospheric pressure. Student, barometer is an instrument which is used for measuring pressure, and it was constructed by Torricelli in 1643. Now construction of simple barometer.
Student, it is a glass tube with narrow uniform bore and whose length is 100 centimeter, and it is closed at one end. It is closed at one end, and then that tube is filled. The tube is filled with pure and dry mercury. Pure and dry mercury. After that, the thumb is tightly placed at open end, and then pour pure and dry mercury so that no air bubbles are left inside the tube. And after that inverted in a bowl containing mercury. And it is observed some mercury moves down, due to which an empty space is created, and this empty space is Torricellian vacuum. Torricellian vacuum. Student, it is found that if barometric height is less than 76 centimeter, we can say that air pressure has fallen, and if more than 76 centimeter, we can say that air pressure has increased. So student, today's class is over. Thank you. Hello student, welcome to my online chemistry classes for class 8th. Let's continue the chapter, that is the element, compound and mixture. And the topic is separation of component of mixture. In previous video I was explaining the separation of component in the mixture. What kind of mixture? Mixture of sodium chloride and calcium carbonate, or we can also say that mixture of common salt and marble powder. कैसे सेपरेट किया था इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल we add some amount of water in the mixture of NaCl and CaCO3. As a result, sodium chloride is dissolved of that water, whereas CaCO3, that is marble powder, remain unsoluble in that water. After the filtration, CaCO3 is extracted from that mixture and water contain the soluble form of NaCl. After the heating, water is going to be evaporate and NaCl is left behind in that beaker. And calcium carbonate, which is obtained in wet form, after dry it is also converted into their dry form. So we can separate the calcium carbonate and NaCl separately. Okay, क्या करना था? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। NaCl और CaCO3 जिनका फिक्स्ड फॉर्मूला है, प्योर कंपोनेंट है, मिक्सचर है, इनको हमने कैसे सेपरेट किया था? ये जो टेक्निक यूज की थी, इट इज डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। कोई भी अगर वन कंपोनेंट उस मिक्सचर में सॉल्युबल होगा तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे। ओके, इस मिक्सचर में mixture of NaCl and calcium carbonate, NaCl is soluble in water. So when we add water, NaCl तो dissolve हो गया, whereas calcium carbonate undissolved रहा, remain insoluble रहा, और वैसे as such वैसे पड़ा रहा उस water में। जैसे ही हमने फिल्टर किया,
फिल्टर किससे करेंगे? फिल्टर पेपर, मैंने आपको बताया था फिल्टर पेपर इज अ काइंड ऑफ पेपर इन हैविंग सच अ स्मॉल पोर्स इन इट, जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट उन पोर्स को पास करता हुआ नहीं जाएगा, whereas soluble form of NaCl and the water उसको पास करता हुआ चला जाएगा। तो नीचे जो बीकर रखेंगे उसमें क्या कंटेंट क्या आ जाएगा? मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस NaCl। और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ड्राई कर देंगे क्योंकि वो वेट फॉर्म में होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमको रिकवर हो जाएगा। और NaCl प्लस वाटर के मिक्सचर को क्या कर देंगे? अलाउ टू बी इवोपरेट। उसको हम सनलाइट में या हीट पे जब अलाउ करेंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा वाटर और NaCl बढ़ जाएगा। आज हम एक दूसरा मिक्सचर लेते हैं। क्या मिक्सचर लिया हमने? हमको वो सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है? अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट सब जानते हो, पिछले टर्म पे भी हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट का नाम दिया था। दैट इज क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। एंड इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड व्हाट अबाउट अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम मींस NH4, क्लोराइड और यहाँ पे भी क्लोराइड, दैट इज Cl। ओके, तो आज जो हम लोगों ने मिक्सचर लिया है वो है अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमने मिक्सचर इसको मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस हैविंग फॉर्मूला दैट इज NH4Cl and also common salt is a pure substance having formula that is NaCl. When we mix together and they do not react with each other chemically, ये केमिकली आपस में कॉम्बिनेशन या रिएक्शन नहीं करेंगे, तभी तो इसको बोल रहे हैं मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर इज दैट kind of impure substance and formed by mixture combination of two or more than pure substance which do not react to each other। ऐसे प्योर सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी कॉम्पोजिशन में उठा के डाल देना है। ओके, सो आज हम लोग क्या टेक्निक यूज करें? आज हम लोग यूज करेंगे सब्लिमेशन मेथड। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? सब्लिमेशन टेक्निक या फिर मेथड। किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये हमने यूज किया सब्लिमेशन प्रोसेस? अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड गेट्स वेपोराइज्ड आफ्टर हीटिंग। प्रोसेस क्या होता है बच्चों? नॉर्मल केस में जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड आफ्टर हीटिंग कन्वर्टेड इनटू देयर लिक्विड स्टेट, एंड अगर हम अलाउ टू हीट करते ही जा रहे हैं देन लिक्विड कन्वर्ट इनटू देयर वेपर्स फॉर्म। ये जनरल चार्ट होता है सॉलिड स्टेट से किसी भी कंपोनेंट को उसके वेपर फॉर्म में जाने का। आफ्टर हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू देयर लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू देयर वेपर स्टेट। बट कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो जब उनको हम हीट करते हैं, जब इनको हम हीट अलाउ करते हैं, देन इट directly converted into their vapor form। Okay, so when solid after heating directly converted into their vapor form without the conversion of into their liquid form, वो अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं, अपने वेपर्स फॉर्म में जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सब्लिमेशन समझ में आ गया? सारे लिक्विड ये प्रोसेस सारे सॉलिड ये प्रोसेस नहीं देते हैं। जो जनरल सॉलिड का जो फ्लो होता है वो क्या है? फर्स्टली आफ्टर हीटिंग सॉलिड कन्वर्टेड टू देयर लिक्विड स्टेट एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू देयर वेपर फॉर्म व्हेन वी अलाउ टू हीट। बट सम सॉलिड लाइक एज कैम्फर, आपके घर में कपूर होगा, आप उसको देखोगे, जब उसको हम जलाएंगे इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू देयर वेपर फॉर्म विदाउट कन्वर्जन इनटू देयर लिक्विड फॉर्म। वैसे ही बच्चों अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड भी आपका इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। आप सब्लिमेशन ये करता है। सब्लिमेशन मींस जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करने के लिए अलाउ करेंगे वो डायरेक्ट इसमें जाएगा, उसके वापस फॉर्म में जाएगा, जबकि सोडियम सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया? सब्लिमेशन। देखिए बच्चों यहाँ मैंने एक फिगर बना रखा है। ये क्या है? बर्नर है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैम्प
ये क्या है, बर्नर का काम क्या होता है, हीट का काम करता है, इसको हम हीट से हीट इसमें स्प्रिट रहता है जो कि जलता है और हमको हीट देता है। ये क्या है बच्चों, वायर गेज है। अब इस स्टैंड के ऊपर हम इस वायर गेज को रखते हैं। देन इसके ऊपर ये देखिए, ये कुछ डिश जैसी लग रही है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। जब हम हीट करते हैं तो अपना ये जो हमारा बीकर है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे हीट के ऊपर नहीं रखते हैं। हम कैसे रखेंगे, पहले चाइना डिश रखेंगे, उसके ऊपर अपना ये बीकर रखेंगे और इसके अंदर हमने क्या डाला है, मिक्सचर। ये क्या है बच्चों, मिक्सचर है। किसका है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, और क्या है बच्चों, जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट, इसको हीट करना स्टार्ट किया, किसको हम, ये हीट किसको पहुंचेगी, सबसे पहले वायर गेज को, वायर गेज के बाद चाइना डिश को, चाइना डिश के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को, और बीकर के अंदर क्या रखा हुआ है, इस जार के अंदर रखा हुआ है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, अब जब हीट इस मिक्सचर को मिलेगी, देन द होल अमोनियम क्लोराइड, जो कि पूरा अमोनियम क्लोराइड है, इट्स गोइंग टू बी सब्लिमाइड। वो कैसा हो जाएगा, उसको वो सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन मींस अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बनने लगेंगे, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, इसके वेपर्स बनने लगेंगे। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जब हम वेपर्स को इट इज अलाउड टू कूल, उनको कलेक्ट कर लेंगे, वो ठंडी हो जाएंगी वेपर्स, सो वो वापस अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जब हम इस वाटर को गैस पे रखते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन अगर हम उसके ऊपर कोई प्लेट उसको कवर कर दें और फिर ठंडा होने के बाद देखेंगे, दैट स्टीम इज कन्वर्टेड अगेन इनटू देयर लिक्विड फॉर्म। वो वाटर फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो जो वेपर्स थी वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। सो यहाँ पे भी यही है कि सॉलिड सब्लिमेशन में क्या है, आफ्टर हीटिंग सॉलिड कन्वर्टेड इनटू देयर वेपर्स फॉर्म, एंड व्हेन वी कलेक्ट वेपर्स एंड अलाउड टू कूल, देन इट अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। अमोनियम क्लोराइड को हमने हीट किया, इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म, उन वेपर्स को कलेक्ट किया, ठंडा होने के बाद वो वेपर्स अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म ऑफ NaNH4Cl, अमोनियम क्लोराइड में। सो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बनने लगी। क्या लिखा है, वेपर्स ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बन गई। अब ये वेपर्स देखिए, मैंने यहाँ पे इसको बंद कर रखा है, कॉटन वूल प्लग। यहाँ पे हमने इस जार के ऊपर माउंट पर क्या लगा रखा है, कॉटन लगा रखी, ताकि इसकी वेपर्स बाहर ना निकल पाए। तो जब वेपर्स बाहर नहीं निकलेंगी तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका ये जार है, इसकी जार की वॉल से ये वेपर्स टकराएंगी। जब टकराएंगी तो ये ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जो जार है उसकी वॉल पर ये कैसे हो जाएगा, रीसॉलिडिफाइड मतलब अगेन ये अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। Whereas अमोनियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का क्या हाल रहेगा, सोडियम क्लोराइड as such remain in that beaker and shuttle down। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा उस जार में, whereas अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो जाएगा, रीसॉलिडिफाइड हो जाएगा और बीकर के जार में, इंस्ट्रूमेंट के जार में आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्लिमेशन, एंड इस सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करके हमने इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया। मैं फिर से बता दे रही हूँ फटाफट से। सेपरेशन किसका करना था, सेपरेशन करना था अमोनियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का। ओके, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ओके, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की, सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू देयर vapor form, and when we collect that vapors and allow to cool, these vapors again converted into their solid form। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो जब अपने किस फॉर्म में चला जाए, वेपर फॉर्म में चला जाए, विदाउट गोइंग देयर लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय डायरेक्ट इसमें चला जाए, वेपर स्टेट में चला जाए, और these vapors again after cooling converted into their solid form। so इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। एग्जांपल इज कैम्फर, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर आपको बहुत बार देख चुके होंगे, बट इट इज न्यू फॉर यू, दैट इज द
NH4Cl, इसमें भी सबलाइन होने की प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक जार लिया, उस जार के अंदर क्या डाला, मिक्सचर डाला, मिक्सचर में क्या था, अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl। इसको हमने चाइना डिश पे रखा इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, और हमने स्टैंड पर वायर गेज लगाया, उसके ऊपर रखकर हमने इसको अलाउ टू हीट किया। हीट करने के बाद NaCl कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, NH4Cl is going to be vaporized. Vaporized it means it going to be sublime. सबलाइन हो जाएगा, और इसको हमने कॉटन ऊपर से प्लग कर रखी है, कॉटन के से ये बाहर नहीं जा पाएगा। सो ये इसकी जो वेपर्स होंगी वो वॉल से टकरा करके ठंडी हो जाएंगी और रीसॉलिडिफाइड हो जाएंगी। बाद में इस इंस्ट्रूमेंट को हम अलाउ टू कूल कर देंगे, ठंडा कर लेंगे, और इसमें से कॉटन प्लग हटा करके इसकी वॉल में से हम क्या कर लेंगे, NH4Cl को निकाल लेंगे, और इस जार के नीचे क्या पड़ा रहेगा, रिमेनिंग क्या बचा रहेगा, NaCl। सो ये आपकी रिकवरी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी थर्ड मिक्सचर को किसी तीसरी टेक्निक से सेपरेट करेंगे। ओके, थैंक यू। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in previous video I have discussed chapter first in civics. So in chapter first civics, union legislatures means संघ विधानसभा, माने यूनियन यानी संघ, लेजिस्लेचर यानी विधानसभा। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम motivational sentences as hard work is key of success, so everybody should hard work in life to get success. Understand? Because God helps those people who always work hard. ईश्वर भी उन्हीं की हेल्प करता है जो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। So students, do hard work and get success in life. Today I will going to explain about Indian government. Indian government, yeah, what is the structure of Indian government? So first we discuss कि Indian government have divided into three parts. First क्या होता है, legislature, and second executive, and third judiciary. In Indian government had divided into three parts. First legislature यानी legislative, second executive, and third judiciary. Legislative, तो सब at first we discuss about point first, legislative means included in parliament, यानी parliament is included in legislative, यानी parliament, और parliament had divided into three parts, यानी parliament divided into three parts. First president, यानी first is president, and second is Raj Sabha, and third is Lok Sabha. President यानी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द कंट्री, एंड राज्यसभा इज द अपर यानी अपर क्लास या अपर क्लास ऑफ द पार्लियामेंट, एंड लोकसभा यानी लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर क्लास, माने लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर, यानी राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, यानी राज्यसभा को क्या कहा जाता है, यानी राज्यसभा को आर बी नोन एज अपर क्लास, अपर हाउस, एंड लोकसभा वी ऑल्सो नो लोअर हाउस। अंडरस्टैंड? तो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेटिव इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड लेजिस्लेटिव इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट हैव डिवाइडेड यानी इंडियन पार्लियामेंट हैज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, माने भारत का जो पार्लियामेंट है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, माने थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इन फर्स्ट इंक्लूडेड प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट इज फर्स्ट,
second Raj Sabha, and third is Lok Sabha. President is the head of the country, and second Raj Sabha is also called the upper house, and Lok Sabha is also called the lower house. Understand? Next student I will discuss कि second point is executive. Executive means president, माने executive included in first president, second prime minister, and third the union council of the minister. Then first included in president, and second prime minister, and third union council of the minister. Now students, I have discussed first legislature and second executive, and executive is included in president, prime minister, and union council of the ministers. Now students, second point is executive. Executive is included president, यानी president, prime minister, and union council of the minister. यानी union council यानी ministers जो होते हैं, union council ministers भी included होते हैं. Understand? Third point is judiciary. Judiciary यानी न्यायपालिका. First legislative, second executive यानी कार्यपालिका, and third judiciary यानी न्यायपालिका. माने हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका थर्ड पार्ट क्या है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका. तो हाउ जुडिशरी वर्क, माने न्यायपालिका कैसे काम करती है? तो जुडिशरी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट, एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेट कोर्ट. बट वी डिस्कस एज फर्स्ट सबऑर्डिनेट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, माने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं. अंडरस्टैंड? सेकंड हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. अंडरस्टैंड? यानी फर्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट, एंड थर्ड सुप्रीम कोर्ट. अंडरस्टैंड? जुडिशरी वर्क एज अ थ्री पार्ट्स, एज अ सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि इंडियन गवर्नमेंट हाउ डिवाइडेड, यानी इंडियन गवर्नमेंट हैड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेटिव, executive and judiciary. Understand? Second, legislative is divided into first यानी parliament, और parliament have divided into three parts यानी president, Raj Sabha and Lok Sabha. Raj Sabha is also called the upper house and Lok Sabha is also called the lower house. The second point is executive, यानी executive is included in president, prime minister and union council of the minister. Understand? Third, judiciary. Judiciary is divided into three parts: subordinate court, या district court, high court and supreme court. Now we discuss the qualification of the member of Lok Sabha. Lok Sabha यानी Lok Sabha is the lower house of the lower house. माने lower house के membership के लिए क्या क्या qualification की need होती है? Understand? If you wanted to the member of Lok Sabha, यानी the qualifications for the member of Lok Sabha. First क्या है? First है कि he must be citizen of India. माने he must be citizen of India, माने उसे क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजनशिप, माने उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज कि he should less than 25 years of the age, माने उसकी एज जो है should not be, माने 25 years से less than नहीं होनी चाहिए. माने द क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द लोक सभा, माने मेंबर ऑफ द लोक सभा इज वांटेड टू, तो ही शुड नॉट बी लेस देन 25 years of age. Next, he should not be mentally sound. He should not be mentally sound, माने उससे मानसिक, माने उसका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट अगला, he should not be an insolvent. He should not be an insolvent. He should not be insolvent, माने उससे insolvent नहीं होना चाहिए. He should not be in debt. He should not be in debt, माने उससे कर्ज में नहीं होना चाहिए. He should not be in debt, माने उसके पास कोई डेट कर्ज नहीं होना चाहिए. And should have ability to meet his financial commitment, and should have ability, माने उसके पास एक ability होनी चाहिए to meet his financial commitment. Understand?
तो नाउ वी डिस्कस द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ लोक सभा एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ही शुड नॉट बी होल्ड एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. इफ anybody wanted to the membership of the Lok Sabha, then he should not hold an office of the profit under the government. मतलब उसे किसी भी गवर्नमेंट मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट कि he should not a proclaimed offender. मतलब उसका he should not be मतलब उसको proclaimed offender में भी किसी तरह नहीं होना चाहिए. तो नाउ स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस की क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर ऑफ लोक सभा. माने लोक सभा के मेंबर्स के लिए हाउ मेनी क्वालिफिकेशन फॉर नीडेड दिस. स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस वर्किंग ऑफ लोक सभा. एंड बिफोर वी डिस्कस द मेंबरशिप या क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लोक सभा, नाउ वी डिस्कस वर्किंग ऑफ द लोक सभा. लोक सभा की वर्किंग्स क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस हैड लेट डाउन दैट कि इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी एक्सीड इन 6 मंथ. माने पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में शुड नॉट बी एक्सीड 6 मंथ. माने 6 मंथ से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? फर्स्ट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस हैड लेट डाउन दैट द इंटरवल माने इंटरवल बिटवीन टू सेशन माने जो 2 सेशंस का समय होता है पार्लियामेंट का, उसमें किसी भी तरह 6 मंथ एक्सीड शुड नॉट माने 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए. नाउ वी डिस्कस की फर्स्ट आवर्स ऑफ द ईच डे यानी फर्स्ट आवर ऑफ द ईच डे ऑफ द सेशन. माने सेशन का जो फर्स्ट डे यानी जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे का फर्स्ट आवर यानी जो फर्स्ट आवर इज अलॉट होता है. इसके लिए फॉर पुटिंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स. माने मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यानी पुटिंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स कैन आस्क द क्वेश्चंस ईच डे फर्स्ट आवर्स ऑफ द सेशन. अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर. माने इन पार्लियामेंट दिस इज कॉल्ड माने इसे क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है. नो बिजनेस कैन बी ट्रांसैक्टेड इन आइदर हाउसेस. No business can be transacted in either houses unless 10% of the total members माने total members of the house of are present. माने यहाँ पर केवल कितने 10% माने less than 10% माने किसी भी हाउस में can be transacted in either 10% माने 10% लोग ही no business can be transacted. टोटल मेंबर ऑफ द हाउस आर प्रेजेंट माने प्रेजेंट हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कोरम. माने इसे क्या कहा जाता है? कोरम. माने इसे क्या कहा जाता है? कोरम. माने इस टाइम पीरियड को इसे क्या कोरम कहते हैं. अंडरस्टैंड? अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल. माने एक ऐसा लॉ माने एक ऐसा कानून जो क्या होता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस माने जिसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया एज कॉल्ड बिल. माने जिसे हम क्या कहते हैं? बिल. माने बिल के नाम से जानते हैं. तो बोथ यानी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा एंड राज्यसभा यानी राज्यसभा हैव पास इट. माने बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव पास्ड इट. माने ये पास किया जाता है. बिल कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज. माने जो बिल होते हैं वो कैन बी डिवाइडेड माने इन्हें डिवाइडेड किया जा सकता है. कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी बिल यानी फर्स्ट क्या कहे जाते हैं? ऑर्डिनरी बिल. एंड सेकंड इज कॉल्ड मनी बिल एंड थर्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट्स बिल. यानी द बिल हैज डिवाइडेड यानी बिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोज. माने बिल जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल जो होते हैं. सेकंड होते हैं मनी बिल एंड थर्ड जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट बिल होते हैं. नाउ वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ द लोकसभा. फंक्शंस ऑफ द लोकसभा में फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? लेजिस्लेटिव मीन्स कि दे पास द बिल मेक लॉ. माने वे कानून बनाने के लिए क्या करते हैं? बिल पास करते हैं. एंड एनी बिल रिगार्डिंग सब्जेक्ट इन यूनियन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी मूव्ड इन द हाउस. तथा इस
बिल को दूसरे हाउस में मूव कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट काम क्या है? लेजिस्लेटिव। सेकंड जो है वो हमारा क्या है? फाइनेंशियल पावर, यानी लोकसभा हैज टू फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मीन्स कि नो बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मेड विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, माने कोई भी हाउस बिना लोकसभा के परमिशन के फाइनेंशियल पावर, यानी इसका मतलब ये कि लोकसभा हैव टू फाइनेंशियल पावर, माने लोकसभा के पास क्या होते हैं? फाइनेंशियल पावर होते हैं। एंड थर्ड कि कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, माने लोकसभा वर्क एज अ कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, माने ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास इनका पूरा क्या होता है? कंट्रोल ओवर, माने पूरी तरह से ये कंट्रोल करता है। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड about Lok Sabha, Indian government. So I hope you have understand. In next video, I have explained about Rajya Sabha. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घर में जरूर हैं, लेकिन परिश्रम से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम किए हुए सफलता आपको हासिल नहीं हो सकती, इसलिए अपना समय व्यर्थ न करें, परिश्रम से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आगे देखें। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4, विद्यायाः बुद्धि उत्तमा। इस शीर्षक का अर्थ है बच्चों, विद्याया, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। सिर्फ विद्या प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं होता। ठीक है, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद हमें अपनी बुद्धि का सही प्रयोग भी करना चाहिए। यही इस लेसन में आप सीखेंगे। तो बच्चों, हमेशा की तरह आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के विद्यायाः बुद्धि उत्तमा पाठ से ली गई। संदर्भ लिखना तो आपको आता ही, और मैं हमेशा बताती हूँ कि चैप्टर की स्टार्टिंग में बस एक बार ही संदर्भ लिखेंगे, आपको संदर्भ बार बार नहीं लिखना। ठीक है, संकेत डालते रहिए उसके बाद और अर्थ लिखते रहिए। तो देखिए, ये आपका पहला संकेत है, कस्मिंश्चित् से लेकर के अकुर्वन् तक। मैंने यहाँ 3 पैसेज का एक पैसेज कर दिया। ठीक है, एक पैराग्राफ बना दिया है। तो आप इन पंक्तियों का अर्थ देखें। यहाँ कस्मिंश्चित् से लेकर के अकुर्वन् तक का अर्थ मैं पढ़ाऊंगी। अर्थ देखिए, कोई भी बच्चा इन संस्कृत की पंक्तियों को नोटबुक पे नहीं उतारेगा, सिर्फ मुझे ये पढ़ाना है, आपको इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, सुनिए। कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः आसन्। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र थे, आसन में थे। ते सर्वे अपि परस्परं मित्र भावेन अवसन्। ते सर्वे अपि, वे सभी, परस्परम आपस में, मित्र भावेन, मित्र भाव से, अवसन् रहते थे। वे सभी आपस में मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रयः शास्त्रेषु पारंगताः परंतु बुद्धिहीना आसन्। तेषु त्रयः, उन तीनों में, तेषु त्रयः शास्त्रेषु पारंगताः आसन्। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगता में कुशल या प्रवीण, उनमें से 3 शास्त्रों में प्रवीण किंतु बुद्धिहीन थे। एकः धन चार सर्व संधि है ये, और एक तेषु, उनमें से, और उनमें से एक। शास्त्र परांगमुख, शास्त्र से विमुख, परम विवेकशील आसीत्, परंतु विवेकशील था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्, उसका नाम सुबुद्धि था। सः सर्वाणि कार्याणि विचिन्त्य करोति स्म, वह सभी कार्य विचिन्त्य सोच समझ कर करोति स्म, करता था। बच्चों, करोति लट लकार की क्रिया है, लेकिन जब लट लकार की क्रिया में इसमें शब्द हम जोड़ देते हैं तो वो लंग लकार यानी भूतकाल की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फिर से इन पंक्तियों को। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र थे, वे सभी आपस में मित्र भाव से रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में प्रवीण किंतु बुद्धिहीन थे, और उनमें से एक शास्त्र में
बुद्धि था, वह सभी कार्य सोच समझकर करता था। आगे की पंक्ति देखें, एकदा ते चत्वारि मित्राणि अचिंत्यन्, एकदा एक बार उन चारों मित्रों ने सोचा, भो मीन्स हे, वयं 12 वर्षाणि यावत् गुरो अंतिकम विद्याम पठाम, हमने 12 वर्षों तक, यावत् मीन्स तक, हमने 12 वर्षों तक गुरो अंतिकम मीन्स पास, गुरु के पास विद्या पढ़ी। अधुना देशांतरम गत्वा धनम अर्जयाम, अब विदेश, देशांतर मीन्स विदेश, अब विदेश में जाकर धन कमाए। इदं निश्चयं कृत्वा, यह निश्चय करके, ते स्वस्वपित्रो आज्ञार्थम गृहम् अगच्छन्, वे सब अपने अपने पिता की आज्ञा के लिए, आज्ञा के लिए घर गए। आज्ञां गृहीत्वा अन्यस्मिन् दिने, आज्ञा लेकर अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, ते चत्वारो अपि ब्राह्मण पुत्रा, वे चारों ब्राह्मण पुत्र, धनम अर्जयितुं, धन कमाने के लिए, पूर्व देशं प्रति प्रस्थानम अकुर्वम्, पूर्व देश की ओर प्रस्थान किया। प्रति मीन्स ओर, ठीक है। फिर से देखें, एक बार उन चारों मित्रों ने सोचा, हे, हमने 12 वर्षों तक गुरु के पास विद्या पढ़ी, अब विदेश में जाकर धन कमाया जाए या धन कमाए, दोनों से। यह निश्चय करके वे सभी अपने अपने पिता की आज्ञा लेने के लिए घर गए। आज्ञा लेकर दूसरे दिन वे उन चारों ब्राह्मण पुत्रों ने धन कमाने के लिए पूर्व देश की ओर प्रस्थान किया। तो बच्चों, जितना मैंने संकेत बताया था उसका अर्थ कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा संकेत लिख रही हूँ। हाँ बच्चों, आगे का संकेत देखें, यदा से लेकर के संयोजित वान तक आएगा। भविष्य से आगे मैंने बढ़ा दिया है संयोजित वान। यहां भी 2 पैसेज का मैंने एक पैसेज किया है। यदा से लेकर के संयोजित वान तक का अर्थ देखो। यदा ते किंचिन मार्गम अचलन, जब वे किंचिन मार्गम से मतलब है थोड़े से मार्ग पर ही चले या थोड़े से रास्ते पर ही चले, तदा तेषाम ज्येष्ठतरो अवदत्, तब उनमें से ज्येष्ठ में सबसे बड़ा, अवदत् मीन्स बोला, अहो अरे अस्माकं एक चतुर्था मूढ़ा केवलम बुद्धिमान। अहो अरे अस्माकं मीन्स हमारे बीच में से, एक चतुर्था एक चौथा, मूढ़ा मीन्स मूर्ख है, केवलम बुद्धिमान केवल बुद्धिमान है, यानी शास्त्रों में मूर्ख है। हम में से एक चौथा मूर्ख और केवल बुद्धिमान है। परम विद्या बिना केवलम बुद्धिया धनम प्राप्त न शक्यते, परंतु विद्या के बिना केवल बुद्धि से धनम प्राप्त न शक्यते, धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहम अस्मै स्वपार्जितम धनम न दास्यामि, मैं इसे स्वपार्जितम अपने कमाए गए धन को नहीं दूंगा। तदा द्वितीयो अपि अकथ्य, तब दूसरा भी बोला, भो सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, गच्छ त्वं स्वगृहम्, तुम अपने घर चले जाओ। यथा मीन्स क्योंकि, ते विद्या नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तदा दयालु तृतीयो अवदत्, तब दयालु तीसरा बोला, एतत् नोचितम, नोचितम मीन्स ना प्लस उचितम, गुण संधि है, ना प्लस उचितम, यह उचित नहीं है। यथा मीन्स क्योंकि, वयं बाल्यकालात् एव एकत्र क्रीडा, क्योंकि हम बचपन से ही एक साथ खेले हैं। एकत्र से मतलब है एक साथ खेले हैं। अतः अयमपि अस्माभिः उपार्जितस्य धनस्य संभागी भविष्यति, इसलिए अयम मीन्स अयमपि, यह भी, अस्माभिः उपार्जितस्य धनस्य, हमारे कमाए गए धन का, संभागी भविष्यति, बराबर का हिस्सेदार होगा। फिर से देखें, जब वे थोड़े से रास्ते पर ही चले, तब उनमें से सबसे बड़ा बोला, अरे हम में से एक चौथा मूर्ख केवल बुद्धिमान है, परंतु विद्या के बिना केवल बुद्धि से धन प्राप्त नहीं
किया जा सकता। मैं इसे अपने कमाए गए धन को नहीं दूंगा। तब दूसरे ने भी कहा, हे सुबुद्धि, तुम अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तब दयालु तीसरा बोला, एतत् नोचितम्, यह उचित नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही एक साथ खेले